Okay. So first we start with the heading magnetic lines of force. Magnetic lines of force. So what happens? Suppose we have a bar magnet like this. Suppose this is my south pole, this is my north pole. Now we know north pole is the convention that plus M, south pole the convention is minus M. The direction of magnetic lines, inside the magnet, south to north, outside the magnet, north to south. Outside the magnet, north to south. So it will be coming from north and coming back to the south. Okay. So if you see the basic difference between electrostatics and magnetic, we know for electrostatics, if you have positive charge and negative charge, the electric lines of force always appear to start from positive and terminate at negative. Yes or no? Yes or no? Yes or no? Hello. Am I audible? Salman? Sampurna? Yes, sir. কিন্তু দেখ তাহলে ম্যাগনেটের ক্ষেত্রে কি হচ্ছে, এটা যদি আমার মাইনাস এম হয়, এটা যদি আমার প্লাস এম হয়, দেখ ম্যাগনেটের ক্ষেত্রে কি হচ্ছে, ইনসাইড দ্য ম্যাগনেট সাউথ টু নর্থ, আউটসাইড দ্য ম্যাগনেট নর্থ টু সাউথ। তার মানে কি হচ্ছে, এখানে একটা লুপ কমপ্লিট হচ্ছে না, কিন্তু এখানে কিন্তু লুপ কমপ্লিট হচ্ছে না, তাই না? Yes or no? Yes or no? Yes or no? Yes, sir. So that is very, very important point. कि मैग्नेटे की হয় कि একটা লুপ কমপ্লিট হয়, সেজন্য ম্যাগনেটে monopole does not exist. তার মানে আমি যদি ম্যাগনেটিক ফ্লাক্স দেখি, ইন্টিগ্রেশন অফ বি ডট ডিএস সবসময় জিরো হবে, পোল থাকে না বলে। কিন্তু ইলেকট্রোস্ট্যাটিক্সে আমার মোনোপোল হয়, বুঝতে পারলি? কিন্তু ম্যাগনেটে আমার একটা পোল হবে না, হতেই পারে না। হ্যাঁ, সেজন্য আমার এখানে ইলেকট্রোস্ট্যাটিক্সে আমার কি হয়, E dot ds চার্জ এনক্লোজ বাই এপসিলন নট হয়। কিন্তু এখানে কি চার্জ এনক্লোজ হচ্ছে, কিন্তু একটা প্লাস একটা মাইনাস, সেই জন্য নেট ভ্যালু জিরো হয়ে যাচ্ছে। ক্লিয়ার? ইজ ইট ওকে এভরিওয়ান? হ্যালো, সলমান বল কি হলো? Yes, sir. নো কেন লিখলি সলমান? স্যার ভুল করে চলে গেছে। আচ্ছা, এছাড়া কথা গেল ঋতব্রত না। Just one. Okay, so now after this bar magnet, if you see a U-shaped magnet, so suppose this is north pole, this is south pole, so same thing happen outside the magnet.
the direction of magnetic field north to south inside the magnet, south to north, outside the magnet, north to south, inside the magnet, south to north. Okay, everyone? Yes. Second one. Third one. Suppose we have North Pole and South Pole. So if we have this type of thing, North Pole and South Pole, although for that North Pole, in that side you have South Pole, for that South Pole you have that side North Pole. But if we put two North and South Pole very close to each other, the direction of magnetic field north to south, like this. Similarly, this is let it be question 3 number. Similarly, suppose you have two North Pole. Suppose we have two North Pole. We have two North Pole. Okay, so in this situation, direction of magnetic field, they are repelling each other. Same like positive charge. Okay, they are repelling each other. And this is the point which is called null point. What do you mean by null point? No magnetic field. Null point. No magnetic field. Okay, everyone. Apart from this, suppose if we put two magnet, north and south, north and south. This is north, this is south, this is north, this is south. This is the one way. Another way is, suppose north, south, and this one is south, north. So we know outside the magnet, direction of magnetic field north to south. Outside the, this is north, north, south, south. अच्छा, north, south, south, north. और এটা হবে north, south, north, south. এটা north, এটা south. মানে north, south, south, north, 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 south, south. Okay. If you have this type of situation, then we know outside the magnet, north to south, outside the magnet, north to south, north to south, inside the magnet, south to north, outside the magnet, north to south, outside the magnet, north to south, outside the magnet, north to south, outside the magnet, north to south. So here, what happened? These two magnetic fields are opposite in direction. So you can get a null point. Yes or no? Here, outside the magnet, north to south, outside the magnet, north to south, north pole repelling each other. South pole repelling each other. So here you have, these are the 2 points where your net magnetic field is 0. Clear, everyone? Hello?
बुझ्दै वाली? हेलो हेलो, am I audible? Yes, sir. তোরা তো সাইলেন্ট মোডে চলে যাস কেন রে? আচ্ছা, after that magnetic field, next very important topic is, which is mainly you have in your syllabus, that is magnetic elements. Magnetic elements. Magnetic elements. এটাই তোদের mainly syllabus এ আছে. So in this magnetic elements, suppose this is in this magnetic element, मानो हमने एक बार मैग्नेट ड्रॉ किया और we put it with a string and उसको छोड़ दिया. So after some time it will be in a particular direction. Let that is the north side, that is the south side. So I can say ki this is the line which passes through the center of the magnet. और हम क्या देखेंगे कि this line and earth magnetic field, that means earth magnetic field lines, that is called the geographical line, they make some angle. This angle is called theta. What do you mean by that? This one is, I can say, magnetic axis, and this one I can say geographic axis. माने actual earth का जो साउथ पोल है और नॉर्थ पोल है, और अगर हम एक मैग्नेट को रखते हैं इन प्रेजेंस ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, वो जिस डायरेक्शन में इंक्लाइन होता है, दोनों के बीच में एक एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन होता है. दिस एंगल थीटा इज कॉल्ड द मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन. दिस थीटा इज कॉल्ड द मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन. Okay, everyone? Yes? Hello? Yes, sir. Now, ये जो मेरा मैग्नेटिक एक्सिस है, ध्यान से समझो. हाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ये जो मैग्नेटिक एक्सिस है, जब भी मुझे कोई भी एक्सिस मिलेगा, मैं उससे एक प्लेन ड्रॉ कर सकता हूँ. ये प्लेन मतलब क्या है? 2 डायमेंशनल प्लेन ना. एक प्लेन ड्रॉ कर सकता हूँ. तो इसको बोला जाता है, इस प्लेन को बोला जाता है मेरिडियन. सो हम इसको क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक मेरिडियन. इसको बोलेंगे मैग्नेटिक मेरिडियन. मैग्नेटिक मेरिडियन किसको बोलते हैं? कि द प्लेन फॉर्म्ड विद द मैग्नेटिक एक्सिस इज कॉल्ड द मैग्नेटिक मेरिडियन. सिमिलरली मेरे पास जो ज्योग्राफिक एक्सिस है, देखो इस ज्योग्राफिक एक्सिस के साथ भी मैं एक प्लेन बना सकता हूं जिसको बोला जाता है जियोग्राफिक मेरिडियन. Okay, everyone? Is it clear? Everyone, is it okay? Hello? Everyone, is it okay? Yes, sir. Yes, sir. Now I want to explain them one by one. So देखो, सबसे पहले मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन. क्या डेफिनेशन है इसका? मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन क्या डेफिनेशन है? देखो, आई एम जस्ट रीडिंग इट. एंगल थीटा बिटवीन ज्योग्राफिक एक्सिस, एंगल थीटा बिटवीन ज्योग्राफिक एक्सिस एंड मैग्नेटिक एक्सिस. एंगल थीटा बिटवीन ज्योग्राफिक एक्सिस एंड मैग्नेटिक एक्सिस is called magnetic declination. ठीक है? हाँ, क्लियर एवरीवन? माने बेसिकली क्या है, आई जस्ट मानो ये हमारा एक्चुअल अर्थ है. ठीक है? तो ये जो अर्थ है, इसका ये नॉर्थ पोल है, ये इसका साउथ पोल है. ये सब नो? हेलो हेलो. Sir. तो अगर मैं कहीं पे भी एक मैग्नेट रखूं,
जब मैग्नेट का इंक्लाइनेशन कैसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए ना, ये नॉर्थ है ये साउथ है, तो ऐसा होना चाहिए ना मैग्नेट का मेरा। लेकिन हम क्या देखते हैं, मैग्नेट ऐसा नहीं होके मैग्नेट ऐसे करके रहता है, थोड़ा सा डिक्लाइन रहता है। तो ये और ये जो है दिस इज कॉल्ड द डिक्लाइनेशन। समझ में आया? एवरीवन गॉट इट? Yes, sir. हेलो। तो इससे प्रॉब्लम क्या है, इससे प्रॉब्लम है जब भी मैं कोई कॉम्पास लूंगा, मानो ये मेरा अर्थ का नॉर्थ पोल है और मैंने एक कॉम्पास लेके जा रहा हूं। देखो बेसिकली मतलब क्या है, 2-3 बात को पहले समझो। यहाँ पे यहाँ पे मानो यहाँ पे लिखा है अमन हाउस, अमन हाउस, और कोई आदमी ऐसे आ रहा है और यहाँ पे एक बोर्ड लगाया हुआ है, ऐसे करके एरो देके लिखा है अमन हाउस, अमन हाउस। तो यहां से जो आएगा, इधर में एरो है, तो इधर जाएगा कि इधर जाएगा, पहले बोलो तो मुझे, राइट में जाएगा कि लेफ्ट में जाएगा? So right. तो मतलब जिधर एरो है, एरो जिधर देखेंगे उधर ही ना हम जाएंगे, मतलब उधर ही करें। तो Yes, sir. एक्चुअली क्या है, देखो अगर ये मेरा अर्थ नॉर्थ पोल है, एक्चुअल नॉर्थ पोल है, तो मैग्नेटिक नीडल का ये साउथ पोल होना चाहिए, क्योंकि ऑपोजिट पोल अट्रैक्ट ईच अदर। यस और नो? Yes, sir. सो मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल है, एक्चुअली पहला बात है उधर है साउथ पोल। लेकिन एक लेमैन जब जाएगा वो देखेगा नॉर्थ, और वो क्या सोचेगा उधर साउथ है, मतलब वो कंफ्यूज हो जाएगा, होगा कि नहीं? Yes, sir. तो इसीलिए क्या है, मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल जिधर दिखाता है उधर है साउथ पोल, लेकिन दिखाता है उधर, लिखता है हम लोग नॉर्थ पोल। मतलब एक्चुअली जो सपोज्ड नॉर्थ पोल है ऑफ अर्थ, दैट इज इन रियलिटी अकॉर्डिंग टू मैग्नेट वो साउथ पोल होना चाहिए, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, मानो यहाँ पे ये मेरा नॉर्थ पोल है और यहाँ पे मानो नॉर्दर्न रशिया कुछ एक तो है। अब मुझे यहाँ पे जाना है, ये मेरा अर्थ है, तो मेरा मैग्नेट में नॉर्थ पोल ये दिखा रहा है। तो मैं अगर नॉर्दर्न रशिया में जाना चाह रहा था, ऐसे 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 जा रहा हूँ, ऐसे ऐसे जा रहा हूँ, जाते जाते कहाँ पे पहुंच जाऊंगा, मानो चाइना पहुंच गया। तो जाना था जापान, पहुंच गए चीन, समझ गए ना हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जितना भी मैप बनाते हैं, जितना भी तुम लोगों का वो जो ग्लोब तुम लोग देखते हो, मैप जितना है, सैटेलाइट विजन जितना कुछ है, वो सबको इस डिक्लाइनेशन के साथ ही बनाया गया है। मतलब आफ्टर दिस डिक्लाइनेशन ये जो दिखा रहा है, मतलब ये इस डिक्लाइनेशन को करके बनाया गया। सो इफ वी मेक दैट डिक्लाइनेशन, अब मेरा क्या है, नॉर्थ इज नॉर्थ, समझ में आया, विद दैट डिक्लाइनेशन, समझा? इसीलिए देखना, कोई भी ग्लोब अगर तुम लोग गौर से देखोगे, वो पूरा पूरी वर्टिकल नहीं होता, थोड़ा टिल रहता है ना? Yes, sir. सो वो जो टिल क्या हुआ रहता है, दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ कि इस डिक्लाइनेशन को हम लोग, वो उतना ही टिल है जितना अर्थ का डिक्लाइनेशन है, 11.5 या कितना उतना उसका डिक्लाइनेशन है। अर्थ डिक्लाइनेशन जो है वो लगभग कितना 11 पॉइंट कितना है रे? एनीवन प्लीज टेल मी, अर्थ डिक्लाइनेशन कितना है? अर्थ डिक्लाइनेशन देखो कितना है, अभी बता देता है, जस्ट गिव मी 1 मिनट। एग्जैक्ट डिक्लाइनेशन है, अर्थ झुका हुआ नहीं है, हम लोग जो कैलकुलेशन करते हैं इतना एंगल का डिक्लाइन लेके करते हैं, क्या? तो अगर ये डिक्लाइन नहीं करेगा तो नॉर्थ के जगह पे हम लोग 23.5 डिग्री झुक के आगे चले जाएंगे, क्लियर? इज इट ओके एवरीवन, इज इट ओके? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now, what is the definition of magnetic meridian? This one, magnetic meridian. देखो, what is the definition of magnetic meridian? A vertical plane passes through the magnetic axis is called magnetic meridian. A vertical plane passes through the magnetic axis is called magnetic meridian. Similarly, a vertical plane
passes through the geographic axis is called geographic meridian. So down. Okay, a vertical plane passes through the geographic axis is called geographic meridian. Is it clear, everyone? Everyone, is it okay? Yes, sir. Okay. After that, next definition is angle of dip. Angle of dip, which is represented by the symbol del. What do you mean by this angle of dip? What do you mean by this angle of dip? पहले समझो ध्यान से हाँ. Angle of dip is defined as कि resultant magnetic field, a resultant magnetic field makes an angle del. Resultant magnetic field makes an angle del with the magnetic axis in the magnetic meridian is called angle of dip. मतलब अगर मैं एक मैग्नेट को तुम्हारा मैग्नेट अर्थ मैग्नेटिक फील्ड में रखता हूं तो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड और जियोग्राफिकल मैग्नेटिक फील्ड एंड अर्थ मैग्नेटिक फील्ड दोनों मिला के ओवरऑल जो एक मैग्नेटिक फील्ड मुझे मिलता है विच इज बी हियर वी रिप्रेजेंट दिस वन. सो रिजल्टेंट जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका जो डायरेक्शन है वो मैग्नेटिक एक्सिस के साथ एक एंगल बनाता है डेल इन द मैग्नेटिक मेरिडियन. सो ठीक है, तो ये जो मेरा रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है ये मैग्नेटिक एक्सिस के साथ जो एंगल बनाया ये एकदम स्ट्रेट लाइन होगा. सो इस कंपोनेंट को हम बोलते हैं अर्थ हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड. इसका मतलब अर्थ हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है, अब समझो बात को, कहीं पे भी मैं एक मैग्नेट को रखा, मैग्नेट घूम घूम के मानो ऐसे करके इनसाइड, इधर मेरा नॉर्थ है इधर मेरा साउथ है, तो जो नॉर्थ दिखाएगा उधर नॉर्थ साइड है और ये जो डायरेक्शन है ये मेरा अर्थ हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड होगा, ऑलवेज होगा ना. ये सर नो, अरे यहाँ पे साउथ के जगह पे नॉर्थ ले लो, नॉर्थ के जगह पे साउथ ले लो, वो अलग बात है. ये सर नो, इसको तुम नॉर्थ लिखो या साउथ लिखो, ये साउथ होगा, साउथ टू नॉर्थ होता है एक्चुअली, तो ये मानो साउथ है ये मेरा नॉर्थ है, उससे कोई मतलब नहीं पड़ता, बट द डायरेक्शन इज साउथ टू नॉर्थ. ये सर नो. हेलो, मैंने डाउनवर्ड दिखाया है तो डाउनवर्ड दिखाया है. एवरीवन अंडरस्टैंड? हेलो. यस सर. जो मैग्नेट, मेरा मैग्नेट जिधर भी इंक्लाइंड होगा, जिधर भी इंक्लाइंड होगा, मेरा एक मैग्नेट ऐसे इंक्लाइंड है, नीचे की तरफ एस है, ऊपर की तरफ नॉर्थ है, तो ये मेरा नॉर्थ पोल को दिखाएगा और ये जो नॉर्थ और साउथ का जो डायरेक्शन है ये मेरा अर्थ हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा. समझा? समझ में आया? और इसके साथ जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा उसका ठीक परपेंडिकुलर वाला, मतलब इसका ठीक परपेंडिकुलर वाला वर्टिकल कंपोनेंट जो होगा ये होगा अर्थ वर्टिकल कंपोनेंट. क्लियर एवरीवन? एवरीवन अंडरस्टैंड? इतना कुछ लिखेगा तो तुम लोग कंफ्यूज हो जाएगा. सो बेसिकली हो क्या रहा है? व्हाट डू यू मीन बाय अर्थ हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड? द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड cos del. What do you mean by vertical magnetic field? Resultant magnetic field sin del. Let it be equation number A, let it be equation number B. So by squaring equation A and B square cos square del, B square sin square del, horizontal square, vertical square. If we take B common,
b square cos square del plus sin square del equals to horizontal square vertical square. This one is horizontal square plus vertical square. So my net magnetic field जो होगा वो horizontal square plus vertical square या vertical square plus horizontal square होगा. Yes or no? Yes, sir. And dividing b by a, क्या मुझे मिलेगा? b sin del, b cos del, that is b vertical by b horizontal. So tan del is b vertical by b horizontal. So del, that is the angle of dip, that is tan inverse vertical component by horizontal component. Yes or no? Yes, sir. अब देखो इसके ऊपर एक क्वेश्चन मैं अभी तुम लोगों को दे रहा हूँ, फिर एक क्वेश्चन के लिए मुझे वो तुम्हारा वो बुक लाना पड़ेगा. इससे थोड़ा में एक बहुत सुंदर क्वेश्चन है, which is very very important question. Okay. Question is that पहला क्वेश्चन है, देखो here's the question. पहला क्वेश्चन एकदम सिंपल क्वेश्चन है. पहला क्वेश्चन है the horizontal component of earth magnetic field, the horizontal component of earth magnetic field 0.4 into 10 to the power minus 4 Tesla. If the angle of dip is 45 degree, what are the total magnetic field? Or question is, what is the vertical component of earth magnetic field and what is the total magnetic field? Suppose this is the question. So see how easy this question is. We know horizontal component of earth magnetic field, that is b cos del. Yes or no? Just now we know this. ये देखो. Yes or no? See this one. Everyone, yes or no? Hello. Yes, sir. So it's now very simple. 0.4 10 to the power minus 4 b cos 45 degree. That is b into 1 by root 2. B equals to 0.4 into root 2 into 10 to the power minus 4 Tesla. Done? Okay. Now the vertical component. So what do you mean by vertical component? B sin del, you already find out b 0.4 root 2 10 to the power minus 4 sin 45 degree. So what is the vertical component? 0.4 root 2 10 to the power minus 4 into 1 by root 2. तो ये दोनों का वैल्यू सेम आया बिकॉज 45 डिग्री है. अगर दूसरा कोई वैल्यू हो एंगल होता तो एंगल डिफरेंट आता. यस और नो? यस और नो? Yes, sir. ओके. अच्छा, एक क्वेश्चन मुझे और देना है इस पार्ट से स्पेशली. जस्ट गिव मी 1 मिनट. If del 1 and del 2, if del 1 and del 2 be the angle of dip, be the angle of dip observed in two different planes at right angle to each other. Okay, if del 1 and del 2 be the angle of dip observed in two different planes, observed in observed in two different planes right angle to each other, and del is the true angle of dip
true angle of dip. Prove that cot square del 1 plus cot square del 2 equals to cot square del. If del 1 and del 2 be the angle of dip observed in two different planes at right angle to each other, and del is the true angle of dip, prove that cot square del 1 plus cot square del 2 equals to cot. अच्छा, इसके लिए देखो, I just want to show you. देखो, जैसे मानो ये मेरा एक कॉपी है, हालांकि इट्स वेरी टफ टू शो यू. दिस इज, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. दिखाई दे रहा है? दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. यस और नो? यस और नो? एनीवन प्लीज रिस्पोंड. यस सर. इसके बीच में से मैंने एक और पेज ले लिया, तो ये वाला है ऊपर वाला, ये वाला है नीचे वाला, और ये वाला है बीच का. ठीक है, तो ये जो नीचे वाला है और ये जो ऊपर वाला है, दे आर बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. यस और नो? यस सर. और इसका साथ अगर ये एंगल, अगर इसके साथ अगर ये एंगल अल्फा है, तो इसके साथ ये एंगल कितना होगा? 90 माइनस अल्फा. तो ये मेरा ट्रू एंगल ऑफ डिप है. इसको मैं आप ऐसे करके दिखाता हूँ तुम लोग को. ठीक है, समझ में आएगा. दिस टू आर 90 डिग्री टू ईच अदर. ये वाला जो है मेरा अर्थ हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड है एक्चुअल. अगर मेरा ये अल्फा है, तो यहाँ पे क्या हो गया? BH1, ये BH2, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. और तीनों का देखो वर्टिकल कंपोनेंट सेम है. यस और नो? समझा? ये मेरा तीनों का, इस तीनों का ये मेरा वर्टिकल कंपोनेंट है. तीनों का वर्टिकल कंपोनेंट सेम है. इसी चीज को मैं ड्रॉ करके दिखाऊंगा. सामना सामनी रहता तो इसको मैं ज्यादा अच्छा से दिखा पाता, लेकिन दुख की बात है अभी ये पॉसिबल नहीं है. तो मैं इसको अभी यहाँ पे दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड. है एकदम कॉपी का समझो. हाँ, कॉपी का फ्रंट पेज एंड बैक पेज ये दोनों है. ये फ्रंट है और ये बैक है. ये दोनों का बीच में एंगल कितना? 90 डिग्री. और ये इसका ये वर्टिकल साइड है. ये इसका वर्टिकल साइड है. ठीक है, और ये दोनों के बीच में मैंने एक पेज को जो टर्न किया था, ये है ये वाला. तो ये मेरा ट्रू एंगल ऑफ डिप है. देखो क्या बोला? इफ del 1 एंड del 2 बी द एंगल ऑफ डिप ऑब्जर्व्ड इन टू डिफरेंट प्लेन. मतलब ये वाला, इसका भी एक नीचे वाला प्लेन होगा, इसका भी एक नीचे वाला प्लेन होगा, इसका भी एक नीचे वाला प्लेन होगा. समझ में आ रहा है? तो ये जो वाला है, इसमें जो एंगल है, एंगल ऑफ डिप है del 1, इस पे जो एंगल ऑफ डिप है del 2, और इस पे जो एंगल ऑफ डिप है वो del है. इज इट क्लियर एवरीवन? Okay, so if del 1 and del 2 be the angle of dip observed in the in two different planes, right angle to each other, ये एक दूसरे के साथ right angle है to each other, and del is the true angle of dip, prove that this one. So हमने मान लिया, suppose this angle is alpha, so ये angle कितना होगा? They are 90 degree to each other, so this angle is 90 minus alpha. Yes or no? और देखो सबका वर्टिकल कंपोनेंट सेम है. सबका वर्टिकल कंपोनेंट सेम है. वर्टिकल कंपोनेंट सबका सेम है. तो ये मेरा ट्रू एंगल ऑफ डिप है BH. ये वाला है BH1 इसके लिए, और ये वाला हो गया BH2 इसके लिए. दो अलग अलग एंगल ऑफ डिप है. तो इन दैट केस अगर मैं पहला वाला का बात करूं, मतलब tan del 1, फॉर्मूला क्या था? tan del का फॉर्मूला क्या है? वर्टिकल कंपोनेंट बाय BH1. tan del 2 कितना होगा? वर्टिकल कंपोनेंट तीनों का सेम है ना? वर्टिकल कंपोनेंट बाय BH2. एंड tan del कितना है? tan del वर्टिकल कंपोनेंट बाय हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट. यस और नो? Is it clear everyone? Everyone, is it okay? अब देखो मुझे पहले क्या लिखना है? cot स्क्वायर. तो cot स्क्वायर del 1 प्लस cot स्क्वायर del 2. cot का मतलब क्या? tan का उल्टा. तो मैं BH1 बाई BV का होल स्क्वायर लिखूंगा, और cot स्क्वायर del 2 इसका होल स्क्वायर है, तो BH2 बाई BV का होल स्क्वायर.
Can we write this? अब देखो ये जो BH1 है in terms of BH कितना एंगल है अल्फा. So what we can write? BH cos alpha by BV whole square. और इसको क्या लिखेंगे देखो 90 minus alpha. So BH cos 90 minus alpha by BV. Can we write this? Student, please respond yes or no. Yes, sir. So what do you mean by that? BH square by BV square cos square del BH square by BV square cos 90 minus alpha is sin square alpha. Sin square alpha. So what you have? BH square by BV square, that is cos square del plus cos square alpha cos square alpha plus key column cos square alpha 90 minus alpha cos square alpha plus sin square alpha. That means that is equals to B of H square B of V square. এবার দেখ B of H square B of V square কি? tan del কত BV by BH, তাহলে cot কত হয়ে যাচ্ছে এর উল্টোটা equals to cot square del. Proof? Yes or no? Everyone, yes or no? Yes, sir. Yes, sir. After that, अभी हम लोग कुछ छोटा छोटा टर्म्स को फर्स्ट डिफाइन करने का कोशिश करेंगे वन बाय वन. सो सबसे पहला वाला जो है वो है मैग्नेटिक फ्लक्स इंटेंसिटी या मैग्नेटिक फील्ड. नंबर वन, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, और इसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड. ऐसा यूनिट में क्या लिखते हैं? टेस्ला और वेबर पर मीटर स्क्वायर. आई थिंक ऑल ऑफ यू रिमेंबर. तो हाउ यू डिफाइन मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी और टोटल मैग्नेटिक फील्ड? सपोज मेरे पास एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, लाइक बाय यूजिंग अ सोलिनॉइड I can generate a magnetic field B naught, which is externally generated by using a wire, and within this we put a material, ferromagnetic material or diamagnetic material or paramagnetic material, depends on the material. A magnetic field is generated, very strong or weak, feebly magnetized, strongly magnetized, whatever. So what is my total magnetic field? My total magnetic field is magnetic field external plus magnetic field due to medium. বুঝতে পারলি ব্যাপারটা? हेलो, I just give you one example. देखो मेरे पास एक सोलिनॉइड है, सोलिनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड है इनिशियली 0 है. तो इफ वी पुट जस्ट 1 मिनट, मेरे पास मानो एक आयरन है, आयरन कोबाल्ट या निकेल है, ठीक है, मानो आयरन है, आयरन का एक बार है, ठीक है. So what is the magnetic field? No magnetic field. Magnetic field is 0. Now we put it inside a solenoid. Suppose the magnetic field of that solenoid is 100 Tesla. Okay. So once we put this solenoid or you can say within that solenoid, once we insert that bar magnet, suppose my total magnetic field is now become suppose 2000 Tesla. So you understand the total magnetic field due to external plus magnetic field due to medium, that is my total magnetic field 2000, which is external magnetic field 100 and 1900, which is generated due to the medium insert. Clear? Is it okay? Everyone, is it okay? Yes, sir.
So that is called the total magnetic field. Sometimes we see it is very near to the external value, means that my material is not very strong material. Material is weak material like dimagnetic or paramagnetic. Although you know this di, para, ferro in your chemistry also. That's why this time they remove it from your syllabus. ठीक है, हम लोग को टाइम रहेगा तो देख लेंगे, ठीक है. But basically क्या है कि if the material is very strong material means magnetically strong, that means ferromagnetic, iron, cobalt, nickel. So this is highly magnetized. So your overall magnetic field, that overall magnetic field is magnetic field due to the external and magnetic field due to the material, which is induced on the material. Second important thing is relative permeability. Permeability, which is represented by mu r. तो देखो ये relative permeability क्या है? Relative permeability क्या है? Relative permeability is defined as the ratio of total permeability, मतलब medium and material by medium, or you can say this is as a total magnetic field. Try to understand total magnetic field मतलब कि 100 Newton, 200 Tesla by B naught, माने 100. तो माने हमारे यदि फेरोमैग्नेटिक था, इसके लिए अगर मुझे टोटल निकालना पड़ता तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड इज 2000 and this is 100. So that means my ferromagnetic material relative permeability is 20. माने it 20 times increase. Okay, everyone understand? Yes, sir. So this is called the relative permeability. Next is the absolute permeability. Third is the absolute permeability, which is represented by mu. So obviously absolute permeability is the relative permeability into that medium, into that mu, or it is actually defined in different way also. Suppose mu, that means for any medium or any material, that is actually total magnetic field by H, or if we write mu naught like this one, so we can write B naught by H. So what is H? Magnetic intensity. What do you mean by magnetic intensity? Magnetic intensity is actually defined as your total magnetic field upon your medium, means permeability. Understand? Suppose मैंने एक सोलिनॉइड लिया, एयर और वैक्यूम है, तो उसका जो परमेबिलिटी क्या हो गया? म्यू नॉट होगा. ये सर नो? ये सर नो? ये सर नो? अब Yes. देखो मैं तुम्हें बताता हूँ, एक चीज को समझो. मानो मेरे एक सोलिनॉइड है, ठीक है, तो सोलिनॉइड में मैंने ऐसे टर्न लगाया. I is the current and N is the number of turn. So what is my magnetic field inside the solenoid? N mu naught I. कब तक N mu naught I है? जब तक the medium is air or vacuum. तो मेरा H कितना हो गया? B naught by mu naught. That means N mu naught current by mu naught. So mu naught कट गया Ni. So magnetic field जो है inside the solenoid, ये तीन फैक्टर के ऊपर डिपेंड कर रहा है. एक नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, एक करंट और एक मीडियम. तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड का नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ एंड करंट, ये दोनों को मिला के जो होता है दैट इज मैग्नेटिक इंटेंसिटी. माने मैग्नेटिक इंटेंसिटी इज विदाउट मीडियम. माने अगर मैं इसको अगर सॉलिड कर देता हूं फेरोमैग्नेटिक, तो मेरा ये बी नॉट फिर नहीं रहा, अब ये रहा बी. दैट मीन्स कितना हो गया? एन म्यू आई. दैट मीन्स मेरा सिर्फ एक ही चीज चेंज हुआ है यहाँ पे, क्या? मीडियम. तो मैग्नेटिक इंटेंसिटी इज एक्चुअली मैग्नेटिक फील्ड पर यूनिट मीडियम. दैट मीन्स पर यूनिट दैट रिलेटिव परमेबिलिटी. समझ में आया? उसको अगर उल्टा कर दो तो म्यू क्या हो गया? मैग्नेटिक फील्ड बाई एच.
मैग्नेटिक इंटेंसिटी म्यू नॉट क्या हो गया, बी नॉट बाई एच। ओके एवरीवन? Yes, sir. इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है, इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज 4 नंबर, वो है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। Intensity of magnetization is represented by the symbol, intensity of magnetization is represented by the symbol I. Intensity of magnetization represented by the symbol I. What do you mean by that intensity of magnetization? देखो ये दोनों अलग अलग टर्म है, वन है मैग्नेटिक इंटेंसिटी, एक है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या है? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है, मानो मेरे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है बी नॉट। अब इसके अंदर मैंने एक कोई भी मटेरियल रखा है, फेरोमैग्नेटिक, डाईमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, तो जैसा मटेरियल रखेगा उस हिसाब से ये मेरा मैग्नेटाइज्ड होगा, ये सुन लो। तो जो मैग्नेटाइज्ड होगा उसके हिसाब से मेरा एक साउथ पोल नॉर्थ पोल होगा, एक मैग्नेटिक मूवमेंट क्रिएट होगा, ये सुन लो, ये सुन लो। So intensity of magnetization is defined as magnetic movement per unit volume. वॉल्यूम मतलब ये जो मटेरियल जो मैंने रखा है, इस मटेरियल का कुछ ना कुछ तो वॉल्यूम होगा, तो मैग्नेटिक मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। तो देखा गया इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटिक इंटेंसिटी का इसका यूनिट सेम ही है। कैसे? देखो, मैग्नेटिक इंटेंसिटी नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ इनटू करंट, नंबर ऑफ टर्न का पर यूनिट लेंथ का ऐसा यूनिट क्या हुआ, पर मीटर, करंट का ऐसा यूनिट क्या, एम्पियर, तो इसका ऐसा यूनिट हो गया एम्पियर पर मीटर। मैग्नेटिक मूवमेंट का ऐसा यूनिट क्या है, एम्पियर मीटर स्क्वायर। वॉल्यूम का ऐसा यूनिट क्या है, मीटर क्यूब, तो ऐसा यूनिट क्या हो गया, एम्पियर पर मीटर। तो ये दोनों ऑलमोस्ट सेम ही चीज है, पर थोड़ा सा डिफरेंस है। एक तुम्हारा क्या है, एक तुम्हारा एक्सटर्नल एजेंट है और दूसरा जो है इंटरनल एजेंट है। माने इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन मटेरियल के अंदर में जनरेट होता है और मैग्नेटिक इंटेंसिटी जो है वो एक्सटर्नली हमें जनरेट करना पड़ता है। दैट इज द ओनली रिलेशन, अदरवाइज दे आर सेम। मतलब एक्सटर्नल जितना ज्यादा होगा इंटरनली वो उतना अच्छा से जनरेट करेगा। सो इसके बाद है मैग्नेटिक, इसी को मैं लिख देता हूं मैग्नेटिक इंटेंसिटी। माय फिफ्थ वन इज मैग्नेटिक इंटेंसिटी। मैग्नेटिक इंटेंसिटी, these all are mainly definition, which is represented by the symbol H. तो अभी हम लोगों ने देखा मैग्नेटिक इंटेंसिटी is H is B by mu और B naught by mu naught, और कभी कभी इसको टोटल मैग्नेटिक फील्ड पर यूनिट एयर और वैक्यूम, और तब मटेरियल मेरा इन्वॉल्व है बिकॉज B मतलब मटेरियल डाला है, I can write I also. So this is the magnetic intensity, जिसको हम लोग एक वर्ड में अगर लिखें नंबर ऑफ टर्न इनटू करंट लिख सकता है, स्पेशली इन केस ऑफ सोलिनॉइड, इन केस ऑफ सोलिनॉइड। और इसका ऐसा यूनिट सेम होता है एम्पियर मीटर स्क्वायर। एवरीवन ओके? इसके बाद जो है नेक्स्ट जो है वो है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। नेक्स्ट वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी represented by the symbol chi. So मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या है? देखो, it is defined as the ability of a specimen to get magnetized. ध्यान से समझो, कोई भी एक मैग्नेटिक मटेरियल ले रहा है, that can be iron, that can be cobalt, that can be nickel, that can be magnesium, that can be zinc, हाँ कुछ भी ले लो, हाँ वाटर, कोई भी एक मटेरियल ले रहे हो, वो कितना मैग्नेटाइज्ड होगा, मतलब फेरोमैग्नेटिक, डाईमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, वो कितना मैग्नेटिक होगा वो डिपेंड करेगा उसका एबिलिटी क्या है। जैसे देखो फेरोमैग्नेटिक
फेरोमैग्नेटिक का मतलब क्या, दे ऑल आर वेरी गुड मैग्नेटाइज्ड, लेकिन उसमें भी अगर हम आयरन, कोबाल्ट और निकल को रखेंगे, तीनों का सेम मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा, अलग अलग होगा। ये सुन लो, ये सुन लो। Yes, sir. So that ability is called the magnetic susceptibility. मतलब मानो तुम्हारा स्कूल में सपोज सेक्शन ए इज वेरी गुड सेक्शन, अब सेक्शन ए इज वेरी गुड सेक्शन, अब सेक्शन ए में भी मानो सेक्शन ए इज अ वेरी गुड सेक्शन, सेक्शन ए में मानो मैं पढ़ा रहा हूं, सेम लेक्चर मैंने सेक्शन ए का सब बच्चा को दिया, सब बच्चा ने सुना, फिर मैंने टेस्ट लिया। ऑब्वियसली टेस्ट का जो रिजल्ट आएगा सब बच्चा को सेम नंबर नहीं आएगा, आएगा कि नहीं? ये सुन नो, सेम आएगा कि डिफरेंट आएगा? So different. डिफरेंट आएगा। तो डिफरेंट जो आएगा, तो ये क्या, इसका मतलब किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? बच्चा के ऊपर डिपेंड कर रहा है, एबिलिटी ऑफ द बच्चा। कोई बच्चा पढ़ाई में ज्यादा अच्छा है, कोई बच्चा खेल कूद में ज्यादा अच्छा है, कोई बच्चा पेंटिंग में ज्यादा अच्छा है, कोई बच्चा तुम्हारा सिंगिंग में कोई अच्छा है, कोई बच्चा लड़कीबाजी में ज्यादा अच्छा है। सो सबका अलग अलग एबिलिटी है ना? तो इसका मतलब क्या है, मैं सेम लेक्चर दे रहा हूं लेकिन सबको अलग अलग नंबर मिल रहा है, सबका अलग अलग स्पेसिफिकेशन है, सबका अलग अलग एबिलिटी है। इस सबका अलग अलग एबिलिटी जो है डिपेंड करता है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। मतलब आज से तुम लोग कभी टीचर का दोष मत देना कि टीचर अच्छा नहीं पढ़ाता है, इसका मतलब तुम्हारा ही एबिलिटी में प्रॉब्लम है, बिकॉज इट्स डिपेंड ऑन यू नॉट द टीचर। या हेलो Is it okay everyone? समझ में आया? What is the magnetic susceptibility? It is the ability of a material to get magnetized. Clear? Yes, sir. So देखा गया है intensity of magnetization is directly proportional to magnetic intensity. Intensity of magnetization is directly proportional to magnetic intensity. When we equalize, we take a constant. That constant is called chi. That constant is called chi. Is called the magnetic susceptibility. मतलब अगर मुझे इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी के बीच में ग्राफ ड्रॉ करना पड़े, ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन होता है, ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन होता है। और यहाँ से एक और बात हमें पता चलेगा कि हम I/H इस वैल्यू को काई लिख सकते हैं, मतलब द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी। इसके बाद एक और रिलेशन ये है, आज यहाँ तक ही पढ़ाएंगे, नेक्स्ट दिन इसको कंटिन्यू करेंगे। 7 नंबर, रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी and relative RELATIVI ना, relative permeability, BEELITY, relation between magnetic susceptibility and relative permeability। तो यहाँ पे ये जो रिलेशन है, देखो मैंने H के लिए लिखा था, कहा गया, हाँ, H equals to B by mu naught into I. If we start from this one, H equals to B by mu naught minus I. That means B by mu naught, that is H plus I, which is H1 plus I by mu naught. अरे की कोल्लम पर H1 plus I by H, which is H1 plus chi. So B by H, if we move in that side, that is mu naught 1 plus chi. And hope you remember, देखो थोड़ा देर पहले ही बताया है, mu equals to B by H. तो B by H को हम क्या लिख सकते हैं, mu. So B by H को हम लिख सकते हैं mu, that is mu naught 1 plus chi
तो म्यू बाई म्यू नॉट दैट इज म्यू आर दैट इज 1 प्लस काई। ठीक है एवरीवन? ओके, आज इतना ही रहने दो। ठीक है, हेलो हेलो, Yes, sir. हाँ आज इतना रहने दो, फिर हम लोग इसका एक और क्लास ले लेंगे तो ये एकदम अच्छा से होगा। दैट इज माय सेकंड लेक्चर, एटलीस्ट 3 लेक्चर तो देना ही चाहिए। तो आई एम स्टॉपिंग